people are damning me when I say you ought to be nonviolent toward little brown children in Vietnam. We must make a massive demonstration. The moderate, they are the revolutionary. And a person who fought for racial discrimination in Western society, and we are talking about this person here in India. एक्चुअली स्लेव्स को जनरली चेन पहनाया जाता है. एनसीईआरटी की बुक्स में जब भी आप देखेंगे तो आपको चेन नज़र आएंगी. जब वो बिकते थे तो वो चेन के अंदर होते थे. ओनर को ऊपर डिपेंड करता था कि वो चेन से उनको आज़ाद कर दे या नहीं. एग्जामिनर्स हर्ट विल गो गार्डन एंड गार्डन, यू विल गेट मोर मार्क्स. एंड टीचर का काम ही ये है, मेरा काम है कि मैं आप लोगों के इस स्ट्रगल का साथी बन के थोड़ी सी मुश्किल आसान कर दूं, क्योंकि अनुभव थोड़ा सा ज़्यादा है. काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं. चलिए अब्दुल कलाम साहब की बात करें तो वो भी काफ़ी काले थे, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन, उनके थॉट्स आज भी जिंदा हैं, हमेशा जिंदा रहेंगे. इफ FBI was keeping a watch, what is he doing in house, his personal life, his bedroom life, everything was under watch. Hello guys, I hope you are fantastic at your place. This is the second video in the series of the scholars discussion, especially asked by the UPSC, and in the ethics analytica test series, which is for the students who will be writing mains this year after writing the prelims on May 28, 2023. So in the previous video we talked about Savitribai Phule, and today we will be discussing about Martin Luther King. So we'll be knowing about the background of this person and the kind of contribution that person has given, and we will be pointedly focusing on certain concrete words that can be mentioned while writing the answers. Basically what happens that whatever the contribution a scholar has given, and UPSC has asked a question, maybe the question will not be repeated, scholars may not be repeated, but it becomes the standard syllabus of UPSC, which is coming from previous year questions. There is no book published by UPSC. We are having the open-ended boundaries, especially for ethics paper. So to have a good core and good memory of that content which we are having dedicatedly for a specific subject, it is easier for us to retrieve and to respond in time. So let's start from this scholar Martin Luther King Jr., and in short MLKJR. मार्टिन लूथर किंग एक बहुत ही ज़्यादा कहें गॉड गिफ्टेड, गिफ्ट ऑफ द गैप, ऑरेशन रखने वाले, स्पीचेस देने वाले पर्सन थे. ये एक ऐसा नाम है जिसको सभी लोग जानते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग, उनके बारे में लिखना क्या है जिससे नंबर पूरे आ जाएं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा. आंसर में वी कैन नॉट राइट दैट ही वाज अ यूएस, अ ब्लैक, फॉट फॉर a system like apartheid, racial discrimination and all, but close ended बातें जो हैं वो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी पड़ेंगी. But to begin with, इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं in 1 or 2 minute time. Martin Luther King was given birth on January 15, 1929, and he died on 4th April 1968. इसका मतलब ये है कि he lived only for 39 years, and in this 39 years kind of aura, kind of fame he had, and today we are discussing about him. You just can understand, in Indian scenario we have the people like Bhagat Singh and all, but they are not the moderate, they are the revolutionary. And a person who fought for racial discrimination in Western society, and we are talking about this person here in India. Of course, the boundaries are not known for any prominent scholar and the contribution. Now on 4th April, actually this person, this scholar, Martin Luther King, was assassinated by a person called as James All. He was a 40-year man, jail fugitive, and he assassinated
him and he was sentenced for 99 years, as if he will live for more than 125 years. I really don't know the legal base for it, but 99-year imprisonment was given to James All for assassinating Martin Luther King. But anyway, at the age of 35, Martin Luther King was given Nobel Prize for fighting for inequality issue, and that too on the basis of non violence. नॉन वायलेंस का मोटिवेशन इनको महात्मा गांधी जी से बहुत आता है. हालांकि कभी इनका डायरेक्ट मिलना नहीं हुआ, लेकिन इंडिया में जब दौरा हुआ था मार्टिन लूथर किंग का, उन्होंने बहुत ज़्यादा गांधी जी को अप्रिशिएट किया, उनकी बातों को सराहा, और सबसे बड़ा जो गिफ्ट यहाँ से वो लेके गए वो था नॉन वायलेंस के आइडिया का, जो उन्होंने यूज़ भी किया यूएस के अंदर. नाउ इनका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, उनमें यही पता लगता है कि चाइल्डहुड में इनका जो लाइफ थी वो बहुत ही पीसफुल थी. एंड मार्टिन लूथर किंग सीनियर प्लस एल्बर्टा जो इनकी मदर थी वो काफ़ी वेल टू डू फैमिली से थी. एंड इनके जो फादर थे वो एक पेस्टर थे. पेस्टर मीन्स मिनिस्टर होता है, जो चर्च में काम करते हैं, काफ़ी बड़े चार्जेस को रखते हैं मैनेजमेंट के. और इनके पेरेंट्स ने कोशिश किया कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग इनके मन में कभी ना आ पाए, और इसीलिए ये स्कूलिंग इनकी जो है बुकर टी वॉशिंगटन नाम के स्कूल में हुई, जो कि ओनली अफ्रीकन्स के लिए स्कूलिंग कराने, जो बच्चे होते हैं उनके लिए अवेलेबल है. एंड ऐसा ही कॉलेज जहाँ पे अफ्रीकन ब्लैक्स पढ़ सकते थे, मोर हाउस कॉलेज, जहाँ से इन्हें सोशियोलॉजी में डिग्री मिली. एंड उसके बाद में इनकी मुलाकात कोरेटा से हुई, एंड एट द एज ऑफ 24 he got married. He had 4 kids. So this is what about the family background. But now when we talk about the kind of contribution that he gave while fighting for the racial discrimination causes, he gave 2 speeches: that I have a dream and South America still wears chains. एक्चुअली स्लेव्स को जनरली चेन पहनाया जाता है. एनसीईआरटी की बुक्स में जब भी आप देखेंगे तो आपको चेन नज़र आएंगी. जब वो बिकते थे तो वो चेन के अंदर होते थे. ओनर को ऊपर डिपेंड करता था कि वो चेन से उनको आज़ाद कर दे या नहीं. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यदि हम डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बुक्स के अंदर में यू विल फाइंड एवरीवेयर दैट सिविल राइट्स मूवमेंट जो बेसिकली एक सिविल राइट्स एक्ट 1964 को लेकर आ पाया, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ऐसे ट्रीटमेंट जो ब्लैक्स के लिए इन्फीरियर होते थे एंड वाइट्स को सुपीरियर कर देते थे. तो बेसिकली इसकी शुरुआत जो एक 385 डेज का आंदोलन था, हिंदी भाषा में कहें तो 385 की जो बेसिकली प्रोटेस्ट थी वो मॉन्टेगमरी बस एपिसोड से शुरू हुई, जहाँ पे रोज़ा नाम की एक ब्लैक लेडी ने जो बस में जो सीट होती है जिस पे वो बैठी हुई थी, शी डिड नॉट वैकेटेड इट फॉर द वाइट, एंड white person was quite offended by this. Another girl, 15-year-old black girl, did not vacate seat for the black, and these two incident, and these are the prominent one among others, became the base for civil right movement, which went on for 385 days. And along with this, I would like to mention a very important law. This is Jim Crow law.
ये अलाबामा का एक लोकल लॉ था जिसके अंदर ब्लैक्स को इन्फीरियर रखा जाता था, जिससे कि वाइट जो है वो सुपीरियर रहें, वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिले। तो जब इन्होंने वस की जो सीट थी उसे वैकेट नहीं किया, तो इन्होंने बेसिकली जिम क्रो लॉ का वायलेशन किया और इनको सेंटेंस हुआ। क्योंकि ये चाइल्ड था, इनको सेंटेंस नहीं हुआ, बट इनको सेंटेंस हुआ, जिसके खिलाफ 385 डेज का ये प्रोटेस्ट चला। जिम क्रो लॉ क्या है? बेसिकली जिम क्रो एक आज की डेट में इंग्लिश में फ्रेज है जो बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या अपार्थाइड वर्ड जैसे होते हैं उसी तरह से यूज़ किया जाता है। जिम क्रो एक एनिमेटेड कार्टून टाइप शेप था जिसको राइस नाम के पर्सन ने यूज़ किया था, ड्रेस वैसी ही पहनी थी, एंड 50 सालों में 50 ईयर्स में ये इस तरीके का नाम निकल के आया। ये 1830s की बात है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 1920s एंड 30s। ओके, now Jim Crow law has to be mentioned in the answers, and there can be a question directly also on Jim Crow law. And also I would like to mention that US Supreme Court ने एक केस के अंदर जिसका नाम है प्लेसी वर्सेस फर्ग्यूसन, इस वाले केस में 1897 जिम क्रो लॉ को सही ठहरा दिया कि ये जिम क्रो लॉ जो है वो ठीक है, विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 14। और यदि उसका वायलेशन होता है तो वो सही है कोर्ट की निगाह में, ये बेसिकली यहाँ पर हो गया जो एक्चुअली सही नहीं है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अंडर दिस लॉ देयर वाज another episode was of marriage, that जो racial marriages हैं, जो white and black के बीच में यदि होंगी तो उनको null and void कर दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा। एक ऐसा ही केस था जिसका नाम था लविंग वर्सेस वर्जीनिया। इसके अंदर रिचार्ड लविंग नाम के वाइट पर्सन ने शादी कर ली एक ब्लैक लेडी के साथ में, एंड उसके बाद में जब उनके खिलाफ, शादी के खिलाफ एक केस रजिस्टर हुआ तो वहाँ पे कोर्ट ने उसको बेसिकली नल एंड वाइट कर दिया। उसके भी खिलाफ प्रोटेस्ट शामिल हुई, एंड बेसिकली मार्टिन लूथर किंग वाज वन ऑफ द पर्सन हु वाज टेकिंग इट अहेड। नाउ सच डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वाज देयर। आज की डेट में तो आप बात करें कि हम लोग इक्वलिटी के अंदर भी इक्वलिटी की बात करते हैं एंड इक्विटी की बात ज़्यादा होती है, जहाँ पे हम इक्वलिटी में इनइक्वल्स एंड इक्वल्स की बात करते हैं कि भाई ऐसी 4 यदि ब्रेड हैं तो 2-2 ना दे के उसकी बात ज़्यादा की जाए, जो ज़्यादा हंग्री है और जिसका पेट बहुत भरा हुआ है या जो हेल्दी है वो कम में भी काम चला लेगा। तो लोगों को बराबर बना के इक्वलिटी को एडमिनिस्टर करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा आर्टिकल 14 में इक्वलिटी से ऊपर इक्विटी को रखा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जबकि उस टाइम पर जब सिविल राइट्स एक्ट 1964 आया, साथ साथ में वोटिंग राइट्स एक्ट 1965 भी लाया गया। मीन्स वोटिंग राइट्स आपकी एजुकेशन, आपकी वेल्थ, आपके कलर के ऊपर डिपेंड करता था। दिस वॉज द सिनेरियो इन यूएस। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन सिविल राइट्स Act was there in 1964, on the basis of this contribution he was given Nobel Prize that I mentioned earlier at the age of 35. This was the basic contribution of this man. We are having the clips of the speeches that I have a dream and the African still wears chain. ये आप देख सकते हैं इन speeches में। Trying to redeem the soul of America from racism, war, and poverty. We're dealing with issues that will call for a restructuring of American society. The most difficult time of his life was the 18 months before his assassination. I will continue to preach nonviolence. I do not know that everything that Martin said or did he was quite prepared for. In the middle of all that,
was the rising of the Vietnam War. Dr. King made the decision that he had to be against the war. These people are damning me when I say you ought to be nonviolent toward little brown children in Vietnam. Stick with civil rights! He said, my friends are turning on me. He was devastated. Do you fear for your life? It isn't so important how long you live. The important thing is how well you live. Attacks and the criticisms on him were getting more and more vicious. I'm gonna march if the spirits say march. क्या इनके वॉइस के अंदर में मैग्नेट थी जो लोग एकदम से चले आते थे, बिकॉज मार्टिन लूथर किंग वॉज अ काइंड ऑफ ग्रेट ऑरेटर and he was knowing that how to woo basically people for at least good cause. ऐसे हमारे इंडिया के अंदर यदि हम कहें दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के बेसिकली फाउंडर माने जाते हैं, उनको इंडिया का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है. ऐसा क्वेश्चन बेसिकली आ सकता है और यूपीएससी के अंदर इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू गिव द कंपैरेटिव इंडेक्स कि मार्टिन लूथर किंग एंड स्वामी दयानंद सरस्वती, इवन नेल्सन मंडेला जो अगेन जो ब्लैक्स के राइट्स के लिए लड़ते रहे, अपार्थाइड के अगेंस्ट लड़े, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इवन बैरक ओबामा के साथ में आपको कनेक्शन इस चीज़ का बनाना चाहिए अलॉन्ग विद महात्मा गांधी. जब आप ये चारों लोगों के कनेक्शंस को एक साथ रेसिपी में लेके आएंगे आंसर लिखते वक्त, देन एग्जामिनर्स हार्ट विल गो गार्डन एंड गार्डन, यू विल गेट मोर मार्क्स. Now, apart from this, if we talk about the question that Martin Luther King can become the base for, like UPSC may ask indirect question, I have a document with me and I will be giving you familiarization छोटा सा, and इस वाले डॉक्यूमेंट का आपको बेसिकली जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमने इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. यू कैन डाउनलोड इट ऑल्सो एंड यू कैन कीप इट एज अ रिकॉर्ड सो दैट जब एग्ज़ाम में जाते हैं आप लोग इसको रेफ़र कर पाए. एंड ये वाले जो सारे कंटेंट हैं, थोड़ा सा मेहनत लगता है 4 सोर्सेज से लेके आने में, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बट एज अ टीचर आई हैव टू वर्क द होमवर्क सो दैट इट इज़ मेड ईजियर फॉर यू. यू कैन ऑल्सो डू इट, बट इतना सारा प्रेशर है, पढ़ें कैसे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए. एंड टीचर का काम ही ये है, मेरा काम है कि मैं आप लोगों के इस स्ट्रगल का साथी बन के थोड़ी सी मुश्किल आसान कर दूं, क्योंकि अनुभव थोड़ा सा ज़्यादा है. सो मार्टिन लूथर किंग का फ़ोटो है, थोड़े से काले हैं देखने में, मगर कहते हैं कि काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं. इनके कंट्रीब्यूशन को जाना जाता है. आज की डेट में यदि हम बेसिकली अब्दुल कलाम साहब की बात करें तो वो भी काफ़ी काले थे, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन, उनके थॉट्स आज भी ज़िंदा हैं, हमेशा ज़िंदा रहेंगे. नाउ इनका थोड़ा सा ये फैमिली बैकग्राउंड दिया हुआ है. देन आफ्टर दैट इनके ऊपर जो बेसिकली मूवीज़ बनी हुई हैं उनके भी लिंक हमने इसमें शामिल किए हुए हैं. यू कैन सी व्हेन यू विल क्लिक ऑन दीज टैग्स यू विल डायरेक्टली बी रीचिंग टू द यूट्यूब मूवी. सो यहाँ पे उनकी जो फेमस बातें हैं वो लिखी हुई हैं. फर्स्ट बुक बेसिकली जो मॉन्टगोमरी बस एपिसोड जिसमें रोज़ा को जेल हुई थी एक वाइट्स के लिए सीट खाली ना करने के लिए, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, ये बेसिकली स्टोरी पूरी की पूरी इस वाली बुक में लिखी हुई है. एंड दिस इज़ द कवर पेज ऑफ दिस बुक इफ़ यू मे सी. देन अनदर बुक वाज दैट ट्रम्पेट ऑफ कॉन्साइंस. जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो ऐसी बुक्स लाइब्रेरी में ज़रूर होनी चाहिए और जब जब टाइम मिले लेजर में तब उसको पढ़ना चाहिए. बड़ा अच्छा मोटिवेशन फीलिंग आती है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज़ द कवर पेज फॉर कॉन्साइंस फॉर चेंज. The other book is It's Strength to Love, New York. This is the cover page. It is also a good book. Now, basically, why the question was there, which was asked by UPSC, because there were certain movies filmed on Martin Luther King's life. So I have the name of the movies here.
these are the movies name. To begin with, MLK FBI, it is a very good action movie. So basically, on Martin Luther King's personal life, FBI was keeping a watch. What is he doing in house, his personal life, his bedroom life, everything was under watch. And he was offended. And if you see the glimpse in the video clip that we have given in this video too, you will find that how FBI was after him. The FBI was constantly investigating King. We will not tolerate lowest. I'm gonna march if the spirit say march. Dr. King looked me straight in the eye and said, if you can't drive, you run. If the spirit say march, You can't run, you walk. I will march, oh Lord. You can't walk, you crawl. March if the spirit say march, if the spirit say march, if the spirit say. Then King in the Wilderness it is a general movie. The Boy King, it is also a general movie. We must march. We must stand up. You march those people into rural Alabama, it's got to be open season. May I have a word? There's no word to be had. The people! The people! The people! The people! There's 70 million people watching. These pictures are going around the world. We must make a massive demonstration. White, black, and otherwise. Come to Selma. I heard about the attack of innocent people. I couldn't just stand by. Looks like an army out there. This revolution goes on and on. This revolution goes on and on. Mine eyes have seen the glory, glory, glory. Hallelujah. What happens when a man stands up, says enough is enough? Selma and Legacy of Love. This is a movie for loving versus Virginia, and as well as the love life of Martin Luther King with Coretta. So you will be enjoying it also, and at the same time you will be learning while seeing these movies in your leisure time. Of course, today Amazon and other web series and all you are all seeing. So I will suggest कि ये भी थोड़ा सा देख लिया जाए तो क्या जाता है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है प्लस लर्निंग भी हो जाती है, आपके कोर्स की भी बातें हैं. Now if you look at some of the question asked by the UPSC, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट जो मार्टिन लूथर किंग ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि यदि नॉन वायलेंस को हम फॉलो करते हैं तो बेसिकली वो स्लेवरी की तरह नहीं समझा जाना चाहिए. मतलब एक नॉन वायलेंस के रूप में हम लोग कैंडल मार्च करते हैं या शांति से बैठते हैं मौन व्रत लेकर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इनेक्शन में आ गए तो हम किसी के स्लेव बन गए. बेसिकली इट हैज़ हेल्प्ड इन सोशल चेंज. We can mention how Mahatma Gandhi's Dandi March and many fast unto death has brought the mighty white people to the knee, right? So there are many more things. Every Quit India movement को छोड़कर बाकी उससे पहले जितने भी आंदोलन हैं हम सबकी बात कर सकते हैं. Then second question is about that जब हमारे यहाँ पर मॉब इकट्ठी होती है, भीड़ इकट्ठी होती है, और जब उसकी डिमांड की सुनवाई नहीं होती तो फिर वो गुस्से में आकर कई बसेस को जला सकती है, फायर काफ़ी इन्फ्लिक्ट कर देती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हो जाती है. तो इसको हमें एनालाइज करना है कि यदि प्रॉब्लम को हम निप इन द बड कर दें, उनकी डिमांड जो लेजिटिमेट है उसे यदि सुन लें तो ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं. नाउ बुलडोजर पॉलिटिक्स को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि यूपी के अंदर में ऐसा हुआ, उसके पॉजिटिव्स हो सकते हैं लेकिन नेगेटिव भी हो सकते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रक्शन क्यों करती है, क्यों उसकी डिमांड पूरी नहीं होती. फार्मर बिल्स अभी आया और सरकार ने उसको विड्रॉ भी किया, बट उन लोगों की जिनकी जान गई एंड जितना डिस्ट्रक्शन हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा. वी हैव टू मेंशन इन दिस आंसर एंड वी हैव टू मेंशन मार्टिन लूथर किंग ऑल्सो, बिकॉज ऑलवेज इंडियन फिलोसोफर के साथ में कोई वेस्टर्न थिंकर यदि या स्कॉलर का नाम साथ में आए, इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव गुड मार्क्स.
Then another question, directly close-ended question है that Martin Luther King idea and his movement have enduring appeal including in India. सारी बातें हैं उनकी, right? लेकिन आंसर लिखते वक्त I will still suggest कि आप जिम क्रो लॉ का यहाँ पर जरूर यूज करें. जिम क्रो लॉ के साथ साथ में यहाँ पे प्लेसी वर्सेस फर्ग्यूसन केस, जहाँ पे यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया था. आप लविंग वर्सेस वर्जीनिया केस को ज़रूर मेंशन करें. एंड मॉन्टेगमरी बस एपिसोड, इसको ज़रूर मेंशन करें. उनकी वाइफ का नाम, उनकी मदर का नाम, उनकी स्पीचेस का नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट इन केसेस का नाम, इन लॉस का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब आप मेंशन कर देते हैं कॉन्क्रीटली, यू हैव ड्रॉप्ड अ पॉइंट वेयर इन मार्क्स हैज़ टू बी गिवन बाय द एग्जामिनर, राइट. स्वामी विवेकानंद सरस्वती को आप ज़रूर यहाँ पर मेंशन करें. So this is what is the case. Now returning back, I would like to have a quick roundup of whatever we have discussed so far. That Martin Luther King की हमने बात की, जिनकी जो birth थी, that was there on 15th January 1929 and which is now a holiday. Second Monday जो होता है यूएस के अंदर, वो फेडरल हॉलीडे के नाम से जाना जाता है. एंड 4 अप्रैल 1969 में इनकी डेथ 68 में इनकी डेथ हो गई. एसेसिनेशन हुआ बेसिकली जेम्स आयल के नाम के पर्सन से, जिसको 99 ईयर का इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस के रूप में मिला था. इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला एट द एज ऑफ 35 एंड he had great contribution in form of civil rights and it was against a law called as Jim Crow law, जिसके अंदर में मॉन्टेगमरी बस एपिसोड जैसे इंसिडेंट हुए. यूएस सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसी वर्सेस फर्ग्यूसन केस में इस लॉ को सही भी ठहराया. रेशियल मैरिजेस को नल एंड वॉइड करने के लिए एक केस हुआ था जिसका नाम था लविंग वर्सेस वर्जीनिया, एंड इस केस के खिलाफ भी मार्टिन लूथर किंग गए और फिर रीइंस्टेट हुआ कि भाई ये सारे के सारे जो लोकल लॉज हैं यूएस स्टेट्स के, इनको इनइफेक्टिव किया जाए. एंड ऐसा हुआ भी. टू बिगिन विद 15 स्टेट्स में पहले इसको नल एंड वॉइड किया गया ऐसे लॉ को, जिससे कि लोग फ्रीली शादी कर सकें. आज की डेट में यूपीएससी के अंदर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था दैट राइट टू मैरी, आई थिंक 2019 में 18 में प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन था. नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19(1)(a). मीन्स में जब लिखते हैं तो फिर दोनों ही हैं, लेकिन वैसे तो आर्टिकल 21 का पार्ट है. लाइफ विदाउट लाइफ पार्टनर ऑफ चॉइस, यही लाइफ है, उसके बिना तो कोई लाइफ हो नहीं सकती. एंड ऑफ कोर्स इसीलिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए सही. किसी और का मतलब ये है कि हमारे जो फैमिली पीपल हैं एंड हमारी जो जिम्मेदारियां हैं आगे आने वाले टाइम में, उसके लिए ब्रेड एंड बटर हमें अपना करना है, स्टेटस लेके आना है, रिकॉग्निशन लेके आनी है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर हैविंग फॉर दिस स्कॉलर. Anything you want more for these scholars, I am keeping these videos short and dedicatedly for one scholar only, so that there is nothing mixed. I could make the longer video, but there will be longer video dedicatedly for the sixth topic. There is no problem in taking 4 hours class and for recording 4 hours and 5 hours long video. I have taken at an stretch 5.5 hour class in my teaching experience, and in entire day 12 hour class. तो 12 घंटे खड़े रह के क्लास लेना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. वीडियो भी 4 घंटे का बनाया जा सकता है, लेकिन छोटे वीडियो मेमोरी अच्छी दे के जाते हैं, नोट्स अच्छे बन जाते हैं और याद रह जाता है. बस यही मेरा एंडेवियर है. एनीथिंग एक्स्ट्रा इफ़ यू वांट, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं. हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर भी है. एंड May 28 के बाद में ये एडमिशन्स इस प्रोसेस के लिए तेज शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी भी एडमिशन्स चल ही रहे हैं.
आप कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट बुक करा सकते हैं. बट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, जय हिंद.